مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے لداخ اور جموں کشمیر میں وقف بورڈ جلد ہی قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دہلی میں سینٹرل وقف کونسل کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختار عباس نقوی نے کہا کہ ملک بھر کی تمام وقف جائیدادوں کے بہتر استعمال کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دہلی میں سینٹرل وقف کونسل کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ملک بھر سے وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لداخ اور جموں کشمیر میں وقف بورڈ بنائے جانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ وقف پراپرٹی کو بہتر ڈھنگ سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر وزارت کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی مجھے لگتا ہے کہ جتنی وقف پراپرٹیز ہیں ہمارے دیش میں، ڈیفنس کے بعد یا ریلوے کے بعد ارد گرد لگ بھگ 6 لاکھ سے زیادہ وقف پراپرٹیز ہیں، پرائم پراپرٹیز، جن کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو سکے۔ اس میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر، اسکول ہے، کالج ہے، ہاسٹل ہے، ہاسپٹل ہے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے یا اور بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے پردھان منتری جن وکاس پروگرام کے تحت کیا جا سکے۔ ہم لوگوں نے یوجنا بنائی ہے، اسکیم بنائی ہوئی اور اس کے لاگو بھی کرنا شروع کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، راجیہ کے جو وقف بورڈ ہیں ان کی پرابلمس رہتی تھی، ان کے پاس جو ہے وہ امپلائی نہیں ہوتے تھے، جیسے سرویئر نہیں ہوتا تھا، اکاؤنٹنٹ کی پرابلم آتی تھی، لیگل جو اسسٹنٹ ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، ڈاٹا انٹری آپریٹر نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے جب منسٹری مجھے ذمہ داری ملی تو میں نے راجیہ کے وقف بورڈوں کو یہ جو سپورٹ ہے، چاہے وہ ڈاٹا انٹری آپریٹر ہوں، چاہے وہ سرویئرس ہوں، چاہے لیگل آفیسرس ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں، اس کی ہم نے سپورٹ کی، جس کو کی پے سینٹرل وقف کونسل کرتی ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور بہتر سے بہتر کام ہو سکے۔ مختار عباس نقوی نے یہ بھی واضح کیا کہ جموں کشمیر اور لداخ میں جلد ہی وقف بورڈ بن جائیں گے، اس سلسلے میں کام جاری ہے۔ میٹنگ میں پہنچی جموں کشمیر سے سینٹرل وقف کونسل کی چیئرمین درخشاں اندرابی نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ رہی بات کشمیر کی، ابھی وہ بھی جیو ٹیگنگ میں آ رہا ہے اور وہاں جو جتنے بھی اثاثے ہیں وہ بھی ایک میپ پہ ہوں گے، اور جنہوں نے گریب کیا ہوگا ان کو بھی اب یہ سوچنا ہے ہم کس طرح سے اس چیز کو واپس کریں، کیونکہ وہاں پر ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی۔ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک سٹیٹ میں لانی ہے اور کوئی بھی وقف کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے بعد جو ہے ابھی کورٹس میں جو سوال آتا ہے وہ بھی ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وقف از آلویز وقف، وہ کسی کا اثاثہ نہیں ہے۔ ہم اس پہ سکول، ہاسپٹل، بڑے بڑے مالز بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور غریب بچے اس پہ پلے جن کا یہ حق ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں وقف بورڈ بن رہا ہے، اس کی پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ لیہ کرگل میں وقف بورڈ بنے گا، جہاں کا بھی پروسیس شروع ہو گیا ہے، جلدی وہ بھی بنے گا۔ اور ابھی تمام پورے دیش بھر کے وقف بورڈوں سے میں جو جن لوگوں کا اپائنٹمنٹ ہمارے سینٹرل وقف کونسل نے کیا ہے وہ سب آفیسرس یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن کافی حد تک پورا ہو چکا ہے، جیو میپنگ کا کام چل رہا ہے۔ جیو میپنگ کا کام IIT کھڑگپور آئی ٹی رڑکی کر رہی ہے، AMU کر رہا ہے، IIT کانپور کر رہا ہے، جامعہ کر رہا ہے، اور بھی تمام جو امپورٹنٹ ریپوٹیڈ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ جیو میپنگ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جیو میپنگ بھی جلد سے جلد ہم پوری کرا لیں گے۔ مختار عباس نقوی نے بتایا کہ پراپرٹی ڈیجیٹلائزیشن کا کام بھی کافی حد تک پورا ہو چکا ہے، جیو میپنگ کا کام چل رہا ہے اور جلد ہی یہ بھی پورا کر لیا جائے گا۔ نیوز 18 اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ کورونا وبا کو نظام الدین مرکز سے جوڑنے کے معاملے میں جمعیت علماء ہند کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دہلی کے تبلیغی مرکز کو منفی انداز میں پیش کرنے کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ شفاف اور حقیقت پر مبنی رپورٹنگ سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسروں کو مشتعل کرنے کے لیے کی جانے والی رپورٹنگ مسئلہ ہے۔ CJI بوبڈے نے سماعت کے دوران تبصرے کے طور پر یہ بات کہی۔ آئمہ موزنین کی تنخواہوں کے مسائل کو لے کر نیوز 18 اردو کے ذریعے دکھائی خبر نے اپنا اثر دکھایا ہے۔
5 माह से रुकी हुई तनख्वाह के मसाइल को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने 2 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। हफ्ते भर कबल आइमा मौज़नीन ने मसाजिद कमेटी के सामने एहतजाज करते हुए हुकूमत को इंतबाह दिया था कि अगर ग्रांट जारी नहीं की गई तो वो अपने अहल खाना के साथ मंत्रालय के सामने धरने पर बैठेंगे। ग्रांट जारी कर दी गई है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर आइमा मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर शहर में गुमराहकुन मैसेज चल रही है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। कमेटी आइमा मौज़नीन की तनख्वाहों के मामले पर पिछले कई महीनों से न्यूज़ 18 उर्दू अपनी कोशिश कर रहा था, समाज की तंजीमें और फिर मसाजिद कमेटी के लोग भी इसके लिए लगे हुए थे। लेकिन अब ये खुशखबरी आई है कि इसके लिए एक काम जारी होगा। इस मामले पर बातचीत करने के लिए मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं यासिर साहब क्या है ऑर्डर आए हैं और अब कब तक जो है इमाम मौज़नीन के जो है अकाउंट में जो है उनके नजराने पहुँच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आयोग पिछला वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण का हमको आदेश इमाम मौज़िनों के नजराने अनुदान के संबंध में जारी हो गया है और आदेश हमें प्राप्त हो गया है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे वेंडर के थ्रू, उसमें हम सभी इमाम मौज़िनों के खातों में अनुदान पहुंचा देंगे। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की खबरें भी चल रही हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि जैसे गुमराह हो रहे हैं। अब इसमें जो भी भ्रम की स्थिति है वो मैंने क्लियर कर ही दी है कि आज आदेश हो चुके हैं और 2-3 दिन में इंशाअल्लाह इमाम मौज़िनों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ भी इमाम मौज़िन या आवाम को भी अफवाहों से बचना चाहिए। उर्दू ने जो एक कोशिश शुरू की थी उसका एक मुस्बत नतीजा सामने आया और नतीजा ये है कि पिछले 5 महीने से इमाम मौज़ीन अपनी तनख्वाहों को लेकर जो है परेशान हो रहे थे। कई एहतजाज भी किया गया, वफद ने मुलाकात भी जो मंत्री से की, डेलीगेशन अलग अलग शक्लों में किया, लेकिन उसका एक मुस्बत नतीजा है कि ऑर्डर जारी हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह 2-4 दिनों में इमाम मौज़ीन के अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बेंगलुरु में पिछले साल 11 अगस्त को पेश आए तशद्दुद के वाक़ये के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। जमीयत उलमा हिंद मुतासरा खानदानों की मदद के लिए पेश नजर आ रही है। मौलाना सईद अरशद मदनी की क़यादत में जमीयत उलमा की टीम यहां पर हर माह राशन किट्स तकसीम कर रही है। शहर के NAS फंक्शन हॉल में आज 100 से ज़ायद मुतासरा खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। जमीयत के अरकान ने कहा कि मुतासरीन में फी खानदान 25 किलो चावल, आटा और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। गुज़श्ता 5 माह से मदद फराहम करने का ये सिलसिला जारी है। रियासी सदर अब्दुल रहीम रशीदी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। जो कैद खाने में है, जिनके ऊपर जो है UAPA एक्ट लगा हुआ है और जिनको जो इसके भी अलावा हैं, हर एक को रिहाई के लिए कोशिश चल रही है। लायरों से बातें हो रही हैं और उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। अब गुज़िश्ता हफ्ते जो है लायरों के ज़रिए से 22 अफराद को जो है ज़मानत के तौर पर जो है उनको रिहाई भी मिली है। उनकी कोशिशें जारी हैं भी ज़मानत की रकम और ज़मानत की जो चीज़ें हैं वो सबमिट करने के बाद इंशाअल्लाह वो रिहा हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की तरफ से ये काम हो रहा है। जमीयत उलमा की तरफ से सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सईद अरशद मदनी साहब के हुक्म पर शुरू ही दिन से जो है काम शुरू हो गया। जो बच्चे शहीद हुए उनको भी 1 साल तक का ख़र्चा दिया गया जमीयत उलमा की तरफ से और मुस्तकिल जो है राशन हर माह जो ज़्यादा मोहताज है यानी जो परेशान हाल है जिनका इस वक्त किफ़ालत करनी चाहिए, उन पर उनके लिए मदद करनी चाहिए। ऐसे नोटिफाई करके ऐसे सर्वे करने के बाद ऐसे ख़ानदानों तक जो है इन घरों तक जो है उसका राशन पहुंचाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं मरतबा दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है। बहुत सारे अब हम घरों के पास अभी फ़ोन किए थे तो बाज़ारात बोले हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए 400 में से जो बहुत सारे हमको जिनको मालूम था या एरिया वाइज जाने के बाद हमको जो ज़्यादा मुस्तहिक़ मालूम हुए, ऐसे अफराद जो ज़्यादा उनके ज़िम्मेदार अहबाब थे वो गिरफ़्तार हुए हैं। उनके घर में कोई उनका ज़िम्मेदार नहीं है, तो ऐसे घरानों को देना हमने ज़्यादा अहम समझा। इसलिए ऐसे घरानों को देने के लिए हम ऐसे 120 घरानों को तय करके हम उन तक। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में कायम इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बाद तिजारत और सनतकारी के नए मौक़े क्या हैं
बिजनेस के शोबे में क्या क्या नई तब्दीलियां आई हैं, हुकूमत की पॉलिसियां और दीगर उमूर पर इस मीटिंग में गुफ्तगू हुई। तंजीम के नुमाइंदों ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत के कवानीन के तहत इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत करने की मुकम्मल आज़ादी और गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में ताजरों को रहनुमाई फराहम करने की ज़रूरत है, लिहाजा IICCB के तहत साल 2021 में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो, ये जो इदारा है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ताजिर तिजारत करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए यहाँ पर जुड़ सकें। और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे बड़ा जो काम रहता है वो एडवोकेसी का रहता है कि ताजिर जब तिजारत करते रहते हैं उनके अंदर कुछ भी तकलीफ़ें रहती है गवर्नमेंट के तहत, तो उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम करती है। बिना रिबा के भी जो है, जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, जो बैंकिंग इंटरेस्ट है, उसके बिना भी बिज़नेस को किया जा सकता है। जैसे कि कभी भी जो है ना, बिज़नेस में क्या है, प्रॉफिट मेकिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होगी या बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, उसके ज़रिए से जो है लोगों को इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि भी कोई भी ताजिर वो बैंक से लोन लेके ही वो बिज़नेस को बढ़ाए। इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे वेज हैं जो हमारे शरीयत के अंदर भी इजाज़त है। यौम जमहूरिया की मुनासबत से बेंगलुरु में मुशायरे का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर उर्दू ज़बान की एक और नई तंजीम कायनात अदब का इफ्तिताह अमल में आया। उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की सदारत में मुनक्किदा इस मुशायरे की इफ्तिताही तकरीब में उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल, मुसलमानों के मसाइल पर रोशनी डाली गई। अक़लियतों के बजट में कमी, उर्दू स्कूलों की खस्ता हाली पर गुफ्तगू हुई। चंद माह कबल इंतकाल कर जाने वाली उर्दू की फ़आल शख्सियत रफ़ी धारवाड़कर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुशायरे में उर्दू के फ़रोग़ के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई। हमारी ये गलती है, हम लोग है ना सिर्फ बातचीत के हद तक ही है ना ज़ुबान को रखे हैं, सिर्फ घरों में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बातचीत करते हैं उर्दू, लेकिन पढ़ना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग है ना उसको है ना डेवलप नहीं किया। स्कूलों में है ना बिल्कुल बैकवर्ड स्कूल्स बना दिए हैं, और जो उर्दू पढ़ते हैं वो उसको है ना आगे है ना उसको है ना फ्यूचर नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऐसे दौर में भी जो है उर्दू के तरफ कुछ सवालिया निशान लगाते हैं, इतराज़ करते हैं। हालांकि देखना चाहिए कि जो लोग उर्दू पे सवाल करते हैं, इतराज़ करते हैं, उन्हीं के घर में जब घर पे जाते हैं तो अपने बीवी से कहते हैं खाना लेके आओ, फिर बच्चों से कहते हैं पानी लेके आओ, बाज़ार में जाओ, तिजारत करते हैं तो उर्दू ही का लफ्ज़ इस्तेमाल। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में कोरोना बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से न्यूट्रिशन और कोरोना बेदारी कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क को कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ताहम कोरोना को जड़ से मिटाने का अज़्म बरकरार रखना है। हमारे देश में जो एक कोरोना की आपदा थी, उसको हमने अवसर में जो बदलने का एक संकल्प पूरे देश ने लिया। उसमें जो विमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, समाज के और भी हिस्से हैं, सरकार, समाज और संस्थाओं ने बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और आज अगर कोरोना अपने आखिरी पायदान पर है और दम तोड़ रहा है, तो निश्चित तौर से हमें समाज का जो इस तरह का संयम सावधानी का संकल्प था, उसका एक प्रमुख कारण है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें जान भी है और जहान भी है, हमें जो है वो सावधानी भी रखनी है, और उसके साथ ही साथ अपने समाज को प्रगति और साथ साथ जो है वो आगे बढ़ाने की दिशा में भी। लाल किले में पिछले 70 सालों से होता रहा मुशायरा जश्न जमहूरियत दिल्ली के हिंदी भवन में मुनक्किद किया गया। मुशायरे में 9 शोरा ने शिरकत की। कोरोना की वजह से लाल किले से अलग हो रहे मुशायरे को लेकर उर्दू वालों में मायूसी देखी गई और पूरे मुशायरे के दौरान लगातार लाल किले की बात होती रही। उर्दू अकेडमी के तहत 6 रोज़ा जश्न विरासत उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल मुनक़िद करते रहे हैं गुज़िश्ता दिनों, और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग रहे हैं। वो लोग रहे जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, वो लोग उसमें नहीं आ सके जो नामनिहाद उर्दू वाले हैं। अखबारों में दुहाई उर्दू की के लिए देते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर उर्दू की तरक्की और उर्दू का फ़रोग़ नहीं हो रहा है।
या जो इदारे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो मसला ये है कि वो अपना फ़रोग करते हैं, उर्दू के फ़रोग से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने इस मौके पे आपके गुज़ार की। ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है और इसकी कामयाबी का दारोमदार यकीनन आप पर है और शुआरा पर है, और यकीनन ये कामयाब होगा जैसे कि रिवायत उर्दू रही है। मैं आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उर्दू अकादमी दिल्ली का ये मुशायरा जिसकी तारीख़ पर भाई अख्तर सईद, मोहतरम एहसन आबिद साहब और बाद में मोहतरम प्रोफेसर शेखुर रसूल साहब ने इसकी तारीख़ का जिक्र किया अपनी तकरीरों में कि इसकी क्या अहमियत है, तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम शोरा की जानिब से इस मुशायरे के इनेकाद के लिए प्रोफेसर शेखुर रसूल साहब ने कुछ बातें की, जाहिर है कि वो एक दुखी दिल की आवाज़ थी। सभी प्रोग्राम पे पाबंदी दी, लेकिन ये जो सालाना मुशायरा हर साल होता था, और तो इसको दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने मतलब कोविड के इस दौर से अब हम निकल रहे हैं, निकलते निकलते भी रखवाया, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुशायरा जश्न जमहूरियत और लाल किले का ताल्लुक इतना पुराना है कि पिछले 70 सालों से ये मुशायरा लाल किले में होता रहा। 39 सालों से दिल्ली उर्दू अकेडमी ये मुशायरा कराती आ रही है। आज जबकि कोरोना की वजह से ये मुशायरा हिंदी भवन में हो रहा है, तो भी इसके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उस पर लाल किले की तस्वीर बनी हुई है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बंगाल के 294 असेंबली सीटों के इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर इलेक्शन लड़ने के ऐलान के साथ आज दोनों जमातों ने 193 सीटों पर समझौता होने का ऐलान किया है। कांग्रेस और लेफ्ट की मीटिंग में जहां कांग्रेस के हिस्से में 92 सीट आई हैं, जबकि लेफ्ट को 101 सीटें मिली हैं, वहीं बकिया 101 सीटों पर समझौता नहीं हो सका है। सीपीएम के साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम बेहतर माहौल में बातचीत कर रहे हैं, जिसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह है कि असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने इत्तेहाद में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जमात को भी शामिल करने का फैसला किया है। ऐसे तमाम लोगों को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। इतने लोगों के अंदर अगर सीट का बड़ा होगा तो आप बातचीत तो करना पड़ेगा, और वो सिलसिला जारी है, अब तो शुरू हुआ है, और वो अच्छे माहौल में शुरू हुआ है, अच्छे माहौल में ही मुकम्मल होता है। झारखंड तलबा यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दिए जाने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से यूनियन के सदर शमीम अली ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन, वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम, वज़ीर फलाह चंपई सोरेन के अलावा महकमे फलाह के सेक्रेटरी अमिताभ कौशल के नाम खतूत रवाना किए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेज, स्कूलों में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति आवेदन जो है 28 दिसंबर 2020 को उसके लिए तिथि निकाली गई थी, और मात्र जो है 28 दिन का समय दिया गया था। इस बीच में आखिरी साल होने के कारण लगातार सरकारी छुट्टियां थी। उसके अलावा कई प्रमुख त्यौहार झारखंड राज्य का था, नेशनल त्यौहार था, जिसके कारण जो है शैक्षणिक संस्थान के साथ साथ जो सरकारी कार्यालय है, खासकर अंचल कार्यालय, वो सारे बंद थे, और आय प्रमाण पत्र बनने में भी जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अधिकतर स्कूल कॉलेज के जो छात्र हैं वो छात्रवृत्ति आवेदन नहीं कर पाए हैं और समय समाप्त हो गया है। हम लोगों ने सरकार से और विभाग के सचिव से रिक्वेस्ट किया है कि फिर से जो है समय निकाला जाए। हजारों छात्र जो है छात्रवृत्ति आवेदन भरने से छूट गए हैं, वंचित हो गए हैं। उन्हें अंधेरों से उजाले की तरफ के उन्वान से जमात इस्लामी हिंद की जानिब से चलाई जा रही रियासत गिर मुहिम के तहत नांदेड़ में एक बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने समाज में फैले अंधेरों को दूर करने की बात पर जोर दिया। मुज़ाकरे में शरीक लोगों ने इस्लाम के बारे में अपने जहनों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ सवालात भी पूछे, जिनके इत्मीनान बख्श जवाबात देने की कोशिश की गई। नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये एक जो है हर धर्म की मूल बुनियादी सीख तो यही है, लेकिन हम इंसान कुछ अपने धर्म के बारे में अंधे होकर जिस तरीके से आपस में जो माहौल बिगड़ रहा है देश में, ऐसे वक्त में ये जो अंधाराकडून प्रकाशाकडे ये जो एक उपक्रम लिया है जमात इस्लाम ने, निश्चित ही ये सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सोच अपनी थोड़ी बड़ी करें और
अपने धर्म का, अपने मजहब का तो हमको अभिमान रहना ही चाहिए, लेकिन दूसरे मजहब का हम अपमान न करें, ये भी अगर हम मैसेज दे सकें तो मुझे लगता है कि बहुत से दंगे फसाद इसमें कम हो सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अलग अलग मजहब के लोग इकट्ठा आए और अपनी अपनी सोच सामने संयमित तरीके से रखी तो जो आपस में टकराव होता है वह टकराव कम हो सकता है। जमात इस्लामी हिंद के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है अंधेरों से प्रकाश की ओर, इसमें सिर्फ जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसके अंदर। ख़ास तौर से प्रोमोज का बनाना या वीडियो बाइट्स वगैरह जो बनाना, महिलाओं ने अपने मोबाइल से अपने घर पर वीडियो क्लिप्स बनाए, बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, उसमें इफेक्ट डाले हैं। कि बहुत बड़ी बड़ी सभाएं ऐसे हालात में लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सोशल मीडिया पर जोर दिया गया और उसके लिए वीडियो क्लिप्स वगैरह तैयार करना इसके लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।